السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون انسپکٹر ایس راگھویندر اور ان کی ٹیم نے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک شخص مرزا فرید بیگ ولد مرزا وحید بیگ کو کیا گرفتار اور اس کے قبضے سے غیر قانونی فروخت کیے جا رہے پرندوں کو کیا برآمد۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے حیدرآباد سٹی میگا جاب میلے کا رات ارچنا سامت نے جنرل مینیجر مارکیٹنگ TMI گروپ کی موجودگی میں کیا افتتاح۔ یہ پروگرام OS گارڈن فنکشن ہال چندرائن گٹا میں کیا گیا تھا منعقد۔ شافیہ فاطمہ عمر 21 سال جس کی شادی رشید سے 27 دن قبل ہوئی تھی، اس کے شوہر کے گھر میں مشتبہ حالت میں موت واقع، جس کی لاش کو عثمانی اسپتال کے مردے خانے منتقل کر کے کیس کر لیا گیا درج۔ خسارے میں چلنے والا RTC ادارہ ابھی بھی فائدے کی طرف گامزن ہو رہا۔ ایک طرف حکومت سے مکمل تعاون حاصل، دوسری طرف صدرنشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی نامزدگی کے بعد ادارے میں ایک نیا جوش و خروش۔ سیکریٹریٹ کی تعمیر کے مسئلے پر نیشنل گرین ٹریبیونل میں سماعت، مرکزی وزارت ماحولیات کو جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ فیڈرل فرنٹ کے قیام کے لیے پھر سرگرم، ممتا بنرجی کی کانگریس سے دوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش، ترنمول کانگریس کے موقف پر تجسس برقرار۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150 عطاپور حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون انسپکٹر ایس راگھویندر اور ٹیم حیدرآباد نے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک شخص جس کا نام مرزا فرید بیگ ولد مرزا وحید بیگ عمر 35 سال بتائی گئی ہے، جو کہ جہانما فلکنما حیدرآباد کا ساکن ہے، اسے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے مختلف پرندے برآمد کر لیے۔ وہ پرندے جن کی تجارت فارسٹ ایکٹ کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس دوران ایک شیکھارا پرندہ، ایک وڈ پیکر پرندہ اور 9 الیگزینڈریا طوطے ضبط کر لیے اور ضبط شدہ مواد مزید کارروائی کے لیے محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا۔ ایک میگا جاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ 20 کمپنیاں جن میں 20,000 آسامیاں ہیں ساؤتھ زون پولیس حیدرآباد شہر کے ذریعے OS گارڈن فنکشن ہال چندرائن گٹا کے نیو پولیس اسٹیشن کے پاس منعقد کیا گیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے میگا جاب میلے کا افتتاح ارچنا سامت نے جنرل مینیجر مارکیٹنگ TMI گروپ کی موجودگی میں کیا اور اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس میگا جاب میلے کے ضمن میں تفصیلات بھی بتائی۔ پولیس کی طرف سے آج چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن لمٹ میں ہمارے DCP ساؤتھ زون گجراؤ گوپال صاحب کے لیڈرشپ میں اور TMI گروپ کے پارٹنرشپ میں جاب کنیکٹ میلہ کا آرگنائزیشن ہوا، جس میں ہمارے سٹی پولیس کے سینئر آفیسرز، ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ہیڈ کوارٹر وکرم مان صاحب، ساؤتھ زون کے سبھی آفیسرز اور لگ بھگ 4,000 سے زیادہ ینگ بوائز اینڈ گرلز پارٹیسپیٹ کیے۔ ابھی تک کے مطابق لگ بھگ 35 کمپنیز کے HR مینیجر، ریکروٹرز وہ لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، اور ہمارے ساؤتھ زون DCP صاحب نے بتایا کہ لگ بھگ 700 سے 800 لوگوں کو نوکری ملنے کا چانسز ہے آج۔
जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 3 साल से जॉब कनेक्ट मेला रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहा है। हर महीना एक जोन में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ये 5 जोन में हर महीना एक बार ऑर्गेनाइज होता है और पिछले 3 सालों में लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। ऐसे मौके पे अर्चना मैडम जो यहाँ हाजिर हैं, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके पूरे ग्रुप को, GMI ग्रुप के मुरलीधरन साहब को, जिनका इनिशिएटिव बहुत मजबूत है और कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी बदल गई है इस नए इनिशिएटिव से। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब श्री के चंद्रशेखर राव साहब के डायरेक्शन के मुताबिक न्यू फेस ऑफ पुलिस, ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस, सिटीजन सेंट्रिक पुलिस, इसकी बुनियाद जो तेलंगाना में रखी गई है, उसको हम लोग और बेहतर से बेहतर मुकाम पर लेकर जाएंगे। और पुलिस जो भी करती है, हर चीज़ में कम्युनिटी पार्टनरशिप, सिटीजन पार्टनरशिप, इसका ख्याल ज़रूर रखा जाता है। तो आज जितने यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिनको नौकरी मिली उनको भी, जिनको नौकरी किसी कारणवश नहीं मिल रही है, उनको भी अगली बार ज़रूर मिलेगी, यही हमारी ख्वाहिश है। शुक्रिया। खसारे में चलने वाला TSRTC इदारा अभी अभी फायदे की तरफ गामजन हो रहा। एक तरफ हुकूमत से मुकम्मल ताउन हासिल हो रहा, दूसरी तरफ सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नामजदगी के बाद इदारे में एक नया जोश व खरोश देखा जा रहा। रियासत में कोविड का असर कम होने की वजह से भी RTC की आमदनी में इजाफा हो रहा। माजी के बानिस्बत RTC को यौमिया 2 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही। अगस्त में यौमिया 9.6 करोड़ रुपए रहने वाली RTC की आमदनी नवंबर में बढ़ गई। इस माह यौमिया औसतन 2 करोड़ रुपए की RTC को आमदनी बढ़ गई और अब यौमिया 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी हो रही। साथ ही RTC बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन की तादाद में भी इजाफा हो गया है। जारिया महीने RTC बसों ने यौमिया 33 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। तेलंगाना सेक्रेटरिएट की तामीर के सिलसिले में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर करदा दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त में शिकायत की गई है कि जरूरी मंजूरियों के बगैर ही हुकूमत ने सेक्रेटरिएट की इमारतों को मुनद्दिम कर दिया। इस मामले में मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बरहमी का इजहार किया। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नए सेक्रेटरिएट की तामीर तकरीबन 50% तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब तक मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात ने जवाब दाखिल नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने वजाहत तलब की है। ट्रिब्यूनल ने हिदायत दी है कि 17 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने इमारतों के इन्हदाम से कबल माहौलियात और दीगर महकमे जात से इजाजतनामा हासिल नहीं किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से श्रवण कुमार एडवोकेट ने कहा है कि नए सेक्रेटरिएट की तामीर के लिए इजाजत के बगैर कदीम इमारतों को मुनद्दिम करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मदाखलत के ख्वाहां है। KCR के फेडरल फ्रंट के मुतालिक दोबारा कयास आराइयां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सियासी माहिरीन का कहना है कि फेडरल फ्रंट के कयाम के फौरी तौर पर कोई आसार नहीं है। इसके बावजूद तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह के चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंट के कयाम के सिलसिले में दोबारा कोशा नजर आने लगे हैं। KCR बंगाल व सरबराह तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के सोनिया गांधी पर किए गए रिमार्क्स के फौरी बाद ये कहा जाने लगा है कि दोबारा फेडरल फ्रंट के कयाम की राहें हमवार होने लगी हैं। ममता बनर्जी से दौरे दिल्ली के दौरान कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से मुलाकात न किए जाने पर किए गए सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली के दौरे और वजीर आजम से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करना कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं है। ममता बनर्जी के इस रिमार्क को तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के दरमियान दूरियों से ताबीर करते हुए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जल्द ही इस फ्रंट का हिस्सा बनने के लिए खुद को तैयार कर रही, जो कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस हो। तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम और ऐलान जंग के बाद होने वाली इस सियासी पेशरफ्त पर कहा जा रहा कि फेडरल फ्रंट के मामले में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जल्द फैसला किया जाएगा।
गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने गरीबों और दीगर पसमानदा तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। हकीकी आईनी रूह में लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि विकला और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद को बे आवाज़ की आवाज़ बनना चाहिए। गवर्नर NIRD कैंपस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज के ताउन से सेंटर फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ के ज़रिए एहतमाम खदीम कबायली ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले विकला और पैरा लीगल के तरबियती और तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रही थी। उन्होंने कबायलियों में बच्चों की शरह अमवात और जचगी की शरह अमवात पर तशवीश का इजहार किया और उनकी सेहत और ग़िज़ाई हालात को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए PRC के वाक़याजात की रकम जनवरी 2022 से अदा करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो 1406 जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक PRC के तहत रिटायर्ड मुलाजमीन के वजीफे में हुए इजाफी रकम के बकायाजात को 36 अक़सात में अदा किया जाएगा। क़ब्ल अज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात को 36 अक़सात में अदा करने का वादा किया था। इस वादे को जनवरी से पूरा किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2022 के तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जुमला 74 तातीलात शामिल हैं, जिनमें जनरल हॉलीडेज 28 दिन, जनरल हॉलीडेज अंडर नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 23 दिन और ऑप्शनल हॉलीडेज 23 दिन शामिल हैं। 5 घंटे के अंदर राजेंद्र नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जो कि सुबह के वक्त एक मासूम बच्चा अपने घर से गुम हो गया था। कुछ नौजवानों ने वो बच्चे को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के आउट पोस्ट पर हैंड ओवर कर दिया था। जब ये खबर बच्चे के वालिदैन को मिली तो मां फौरी तौर पर राजेंद्र नगर आउट पोस्ट पर आ गई और अपने मासूम बच्चे को रिसीव कर लिया और राजेंद्र नगर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। नगर में PS में पुलिस वाले ढूंढ के दिए बच्चे को, बहुत शुक्रिया। कब गुमा था आपका बच्चा? मैं सुबह चले गया था। कितने बजे गया था? सुबह 10 बजे गया था। फिर आपको कौन बोले यहाँ बोल के? मैं ढूंढ के फिर रही थी, फिर रोड के ऊपर दिखा बच्चे के हाथ में, तो दिखा तो पुलिस वाले करके बुला लेंगे। कौन सा पुलिस स्टेशन में? ये अत्तापुर पांडुनगर। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर M महेश भागवत IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और बताया कि सरूनगर के एक मकान में चोरी की इतला मिली थी, जहां पर 72 टन सोना गायब होने की इतला मिली थी। सरूनगर पुलिस और LB नगर CCS पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि हमने तकनीकी शवाहिद के साथ मुजरिमों को पकड़ लिया है। रचाकुंडा पुलिस ने डकैती में मुलविस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 1 किलो 805 ग्राम सोना, 90 लाख खालिस नकदी, 10 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त कर ली। मजमूई तौर पर 93,62,000 मालियत की जायदाद जब्त कर ली गई है। पुलिस ने मामले में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और मुलजिम गफ्फार खान पुरानी बस्ती का रिहायशी बताया गया है। गफ्फार खान पर माजी में भी 27 मुकदमात दर्ज हैं। गफ्फार खान के खिलाफ PD एक्ट भी दर्ज किया गया था। वो जेल जाकर दोबारा वापस आने के बाद चोरी कर रहा था। गफ्फार खान के खिलाफ साइबराबाद में 8, हैदराबाद में 10 और रचाकुंडा में 3 मुकदमात दर्ज हैं। मजमूई तौर पर 27 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वो हालिया रचाकुंडा और साइबराबाद केसों में कुलीदी मुलजिम रहा है। मोटरसाइकिल पर जाता है और पहले हिसाब लगाता है और फिर मुलजिम गफ्फार खान कोविड कवायद की पाबंदी करते हुए चोरी कर रहा। मुलजिम गफ्फार खान को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया। सोना खरीदने वाले सैयद ख्वाजा पाशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घर जाने वालों को एहतियात करनी चाहिए कि अपने घरों में सोना ना रखें। हर घर में CCTV कैमरे लगाना जरूरी है। ఈ నెల 19th and 20th అది ఇంటర్వీనింగ్ నైట్ ఈ సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక పెద్ద దొంగతనం జరిగినాయి. అది దాదాపు 70 తోలా దాకా బంగారం పోయినాయని ఆ కంప్లైంట్. అది బహుశా ఆ రోజు ఎక్కడ వాళ్ళు మ్యారేజ్ వెళ్ళారు, తర్వాత మళ్ళా అక్కడ ఇంటికాడ వచ్చి బాబుని అక్కడ వచ్చి పెట్టి మళ్ళీ బయట వెళ్ళారు అని. సో రాత్రి అది
2:30 తర్వాత ఆ బాబు ఉన్నారు ఒకటి ఇంట్లో. అప్పుడు దొంగలు వచ్చి ఈ దొంగతనం చేయడం జరిగింది అని వాళ్ళు చెప్తే ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ సరూర్ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్, ఏసీపీ, डीसीपी अंदर अकड़ा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन इंस्पेक्टर एस राघवेंद्र और उनकी टीम ने महकमे जंगलात के एहलकारों के साथ मिलकर एक शख्स मिर्जा फरीद बेग वल्द मिर्जा वहीद बेग को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से गैर कानूनी फरोख्त किए जा रहे परिंदों को किया बरामद। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने हैदराबाद सिटी मेगा जॉब मेले का रात अर्चना सामत ने जनरल मैनेजर मार्केटिंग टीएमआई ग्रुप की मौजूदगी में किया इफ्तिताह। ये प्रोग्राम ओएस गार्डन फंक्शन हॉल चंद्रायन गुट्टा में किया गया था मुनक्किद। शाफिया फातिमा उम्र 21 साल, जिसकी शादी रशीद से 27 दिन कबल हुई थी, उसके शौहर के घर में मुश्तबा हालत में मौत वाक़े, जिसकी लाश को उस्मानी अस्पताल के मुर्देखाने मुंतकिल करके केस कर लिया गया दर्ज। खसारे में चलने वाला आरटीसी इदारा अभी भी फायदे की तरफ गामजिन हो रहा। एक तरफ हुकूमत से मुकम्मल ताउन हासिल, दूसरी तरफ सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नामजदगी के बाद इदारे में एक नया जोश व खरोश। सेक्रेटरिएट की तामीर के मसले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में समाअत, मरकजी वजारत माहौलियात को जवाब दाखिल करने की हिदायत। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंट के कयाम के लिए फिर सरगर्म। ममता बनर्जी की कांग्रेस से दूरियों से फायदा उठाने की कोशिश। तृणमूल कांग्रेस के मौक़िफ़ पर तजस्सुस बरकरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।